everyone, welcome back to my channel again, that is Let Me Learn Chemistry. So last lecture में हमने क्या क्या पढ़ा था? IUPAC, how to write the IUPAC. So उसमें हमने क्या देखा था? Word root देखा था. So what is word root? So word root is nothing but we have to see the carbon chain. That is the how many carbons are present in that carbon chain. उस carbon chain में कितने carbons present है वो हमें word root में देखना था. Next step was the prefix. Prefix क्या होता है? What is prefix? That comes before writing a name. So that is nothing but our prefix. Second is third one is was our primary suffix. So primary suffix means that can be any, that can be alkane also, or that can be our this if there will be simple alkane or alkene or alkynes group, so that time the primary suffix will be my functional group. Secondary suffix is the if there are two suffix if there are two functional group present in a compound, that time one will become my prefix and the another will become my secondary suffix. And secondary suffix क्या होता है? जो हमारा मेन जो नेम है अल्केन ग्रुप से अटैच करके, जो अल्काइल ग्रुप से अटैच करके जो मेन नेम बनता है, द मेन नेम ऑफ अ कंपाउंड विल कम्स विद द हेल्प ऑफ द secondary suffix. So this is nothing but the IUPAC name and how to write the IUPAC name. Abhi, before going to the nomenclature, how to write a name of a compound, we have to understood the classification of the hydrocarbons. That is the most important topic. And आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं classification of hydrocarbon. So hydrocarbon is classified into two parts. One is the open chain hydrocarbon, open chain hydrocarbon, and second one is my closed chain hydrocarbon. So open chain जो hydrocarbons होते हैं उन्हें हम लोग एलिफैटिक नहीं तो एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं. व्हाट वी कैन कॉल देम? वी कैन कॉल देम एलिफैटिक और एसाइक्लिक. एसाइक्लिक मीन्स व्हाट? विच आर नॉट साइक्लिक. सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिफैटिक भी बोल सकते हैं, नहीं तो एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं. सो दिस ओपन चेन मीन्स इट विल बी माई, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस कार्बन कार्बन कार्बन. ठीक है, ये क्या है? ओपन चेन है. चेन है बट चेन कैसे? ओपन है. एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक भी बोलते हैं, विच इज साइक्लिक. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन मीन्स आवर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन मीन्स आवर जो मेन कार्बन चेन that is be cyclic. For example, I can take this example, I can take this example. So this all these circles or all this cyclic closed है ना, the bond are closed, they are not open. इसकी तरह open नहीं है, वो closed है. So ये सब हमारे क्या है? These are the examples of the closed chain hydrocarbons. Now open chain hydrocarbon is classified again into two parts. First one is my paraffin, second is my olefin. ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? पैराफिन. सेकेंड वन इज द olefins. एंड these paraffins are also known as saturated hydrocarbons. इन पैराफिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. where these olefins are known as the unsaturated hydrocarbons. ठीक है, paraffins are saturated hydrocarbons and olefins are the unsaturated hydrocarbons. Now saturated hydrocarbons में हमारे क्या आ जाएंगे? We will get the alkenes, simple alkanes. These alkanes are examples of the saturated hydrocarbons, where the unsaturated hydrocarbons they come from our alkenes and alkynes. That is, इसमें क्या रहेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वी हैव कार्बन कार्बन
single bond. These are my alkanes. These are nothing but also known as the saturated hydrocarbons. वही जब आपसे क्वेश्चन पूछा था that what is unsaturated hydrocarbon, then you have to tell the alkenes and alkynes. Okay, so these are nothing but the carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond. ठीक है, this is your open chain hydrocarbons. Now what about the closed chain hydrocarbons? So closed chain hydrocarbons में हमारा सिंपल साइक्लिक ग्रुप भी आ सकता है. We will simple write the cyclic group जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए. Then we can write the, so these are homolytic क्या होते हैं, homolytic cyclic groups. ठीक है, homolytic means सेम CH2 है जो बॉन्ड फॉर्म करके हमें एक साइक्लिक कंपाउंड्स दे रहे हैं. मीन्स वी आर यूजिंग ओनली CH2 टू फॉर्म द बॉन्ड्स एंड वी आर गेटिंग अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट हो जाता है हमारा हेट्रोलाइटिक साइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोलाइटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो हेट्रोलाइटिक में क्या हो जाता है, वी हैव CH ग्रुप और CH2 जो भी, बट देयर बॉन्ड्स कैन बी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. उन्हें फॉर्म करके हम लोग एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. वही लास्ट जो हो जाता है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है. सो एरोमेटिक कंपाउंड इज ऑल बेस्ड ओनली ऑन द बेंजीन रिंग. सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स. दैट इज द फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक एंड नेक्स्ट वन इज द हेट्रोलाइटिक. ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बता दिया. हेट्रोलाइटिक में जो रहेगा वो हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स यूज करके बना सकते हैं. होमोलाइटिक में वी कैन टेक द सिंपल आवर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. एंड होमोलाइटिक में जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा. सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं हमारे, ये है. तो ये कैसे फॉर्म हुआ, दिस इज फॉर्म विद CH2. सॉरी मैं इसको मिटा रही हूँ. ठीक है, देन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो. दिस इज आल्सो फॉर्म विद CH2. ओके, या फिर हम यहाँ पे बॉन्ड भी रख सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द होमोलाइटिक. एरोमेटिक में क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल बेंजीन रिंग आ जाएगा. द मेन एग्जांपल ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज द बेंजीन रिंग. एंड बेंजीन क्या होता है हमारा, where we have 6 carbon that is attached with the alternate single and double bonds. हेट्रोलाइटिक में क्या हो जाता है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है ना. होमोलाइटिक एक और चीज, अभी आपको एक डिफरेंस बताती हूँ होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक में. होमोलाइटिक में हम लोग क्या यूज करें, वी आर ओनली यूजिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन, नो थर्ड एटम. ओके, भले ही बॉन्ड्स हमारे ट्रिपल हो, डबल हो, सिंगल हो. ओके, bonds can be double, triple or single, it will be okay, but the atoms that we are going to use is the carbon and hydrogen. Where in the heterolytic hydrocarbon, what will happen, we have this carbon, we have the hydrogen, but there will be third atom is also introduced. ठीक है, and bonds भले double, triple, single जो भी हो. So this is nothing but our heterolytic cyclic hydrocarbons. Okay, so have you all understood the classification of hydrocarbon? So our hydrocarbon is classified into open chain hydrocarbon, closed chain hydrocarbon. जिसे हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक्स भी कहते हैं. सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इफ दे आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, गिव द एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, then you have to tell them saturated or unsaturated hydrocarbon, or directly tell them alkane, alkenes and alkynes आर माई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अगर आपसे कोई पूछे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है तो आप क्या बोलोगे उन्हें, या तो आप बता सकते हो कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यू कैन टेल देम अल्कीन, अल्केन्स और अल्काइन्स. ठीक है, सो एलिफेटिक आपको याद रखना पड़ेगा. देन योर एलिफेटिक और एसाइक्लिक भी हो गया, मीन्स साइकिल नहीं है तो एसाइक्लिक हो गया. सो दिस एलिफेटिक इज क्लासिफाई अगेन इनटू पैराफिन एंड ओलेफिन. सो पैराफिन जो होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एंड जो हमारा ओलिफिन जो होता है दैट वी कॉल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो सैचुरेटेड है मीन्स सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है मीन्स सिंगल बॉन्ड है. एंड मैंने ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपको बताया, उसमें बताया मैंने द सिग्मा बॉन्ड, द सिंगल बॉन्ड्स आर वेरी स्टेबल बॉन्ड्स.
and the bonds are very strong. वहीं जब there is double bond and triple bond, the bond is weak and it is not that much stable. The bonds can easily be breakable. हम bond को क्या easily breakable कर सकते हैं. That's why they are called as unsaturated. Saturated नहीं है, saturation नहीं है उसमें. So they are known as unsaturated hydrocarbons and your alkanes are known as saturated hydrocarbons. ठीक है. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में आ गया. क्लोज चेन को क्या कहते हैं हम लोग? वी ऑल्सो कॉल देम एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ऑफकोर्स सर्कल में, साइकिल में एक क्लोज चेन फॉर्म करेगा. सो दे आर ऑल्सो नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक. सो होमोलाइटिक में हम लोग क्या सेम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यूज करते हैं. वहीं इन हेट्रोलाइटिक वी यूज द कार्बन हाइड्रोजन और अदर एटम्स लाइक हमारा नाइट्रोजन हो गया. वी कैन यूज ऑक्सीजन, वी कैन यूज सल्फर एयर. Okay, and again your homolytic is classified into alicyclic and aromatic. So alicyclic में आप कोई भी homolytic के example ले सकते हो. You can give these examples also, cyclic propane, cyclic butane, any example. And in aromatic we have benzene. अब benzene के जो भी compounds होते हैं, जैसे मैंने आपको example बताया toluene का, phenol का, these are also come under the aromatic compounds. Okay. Now you have to remember what is the structure of toluene and phenol because मैं आपको already discuss कर चुकी हूँ. So this is nothing but the classification of the hydrocarbon. So I think you all have got the idea about the classification of hydrocarbons. If you had any doubt, please put the questions in the comment section and we will help you out. Okay. So thank you for all for watching today's video. I think it will be helpful for you all. Okay. Bye bye.